Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 5 class. How are you? Hope you all are well. ओके 5 क्लास, आई थिंक आप लोगों ने ये वीडियोस देखी होंगी जो आज मैंने अपलोड की हैं. दिस इज़ नॉट द न्यू सिलेबस, इट इज़ ओनली द रिवीजन ऑफ योर प्रीवियस सिलेबस विच we have already done in our class. Okay, so the first revision we start from the unit which is unit number 3, a healthy body. Okay, so you know this thing very well that we are living things, human beings, plants, animals, we are our living things. Okay, so our body, it is human body, it is just like a machine. Okay, why we say this thing that our body is like a machine? Because our body consists of many parts. Okay, our body consists of many parts, many organs are present in our body, and these organs are perform different functions, the functions which are assigned to them. ठीक है, ये सारे वही functions करेंगे. सारे organs आपने देखा है ना कि आपके organs कौन कौन से हैं. parts of your body, your heart, your lungs, your stomach, nose, eye, ear, these are brain, these all are the organs and the parts of your body, and they perform different functions. वही function करेंगे जो इनकी duty है. Okay, सो दैट्स वाई वी से आर बॉडी इज़ अ मशीन. ठीक है, मशीन्स आपको पता है, जैसे आप घर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, स्कूल्स में हैं, वो घर में आपने देखा है कौन कौन सी मशीन्स हैं. यस, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, एसी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और इवन जो आपका स्मार्टफोन है, जो फ़ोन है, कैलकुलेटर है, दीज ऑल आर मशीन्स. ओके, एंड कार, व्हीकल्स, दीज ऑल आर मशीन्स. एंड वी नो when we say our body is a machine, then it must need fuel. आपको पता है ना, without fuel no machine can run and no machine can work. So when we say this thing, our body is machine, then our body need a fuel. Okay, then our body need fuel. And what is the fuel of our body? The fuel of our body is food. Okay, so by this food, when we eat food, this give us energy, and with this energy we can perform different functions of our life. Okay, because if we and we need a regular supply of food, we need a regular supply of food, and our food must be healthy food. Okay, so our body is a wonderful machine. It is made up of many parts. Each part has a special job. All the parts of the body work together so that the body functions properly. It is very important to look after your body. ठीक है, ये तो आपको पता है ना कि अगर कोई भी, जैसे आपने देखा है ना कि आप अपनी चीज़ों की बड़ी केयर करते हैं, अपने टॉयज़ की, वो भी तो छोटी छोटी मशीन्स हैं ना. इसी तरह जो घर में आपने देखा है, जो आपकी मदर्स हैं, वो अपनी जो मशीन्स हैं, इन सब की चीज़ों की बड़ी केयर करते हैं. इसी तरह इफ़ वी से आवर बॉडी इज़ आल्सो अ मशीन, तो हमें इस मशीन की केयर भी तो करनी है ना, लुक आफ्टर तो करना है, ख्याल करना है. तभी हम जब किसी चीज़ का ख्याल करते हैं तभी वो ज़्यादा भी चलती है. ठीक है, लॉन्ग लाइफ भी तभी होती है जब हम उनकी अच्छे से केयर करते हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं अच्छे से उसको फुलफ़िल करते हैं, देन इट विल functions properly. So to stay healthy and alive, to stay healthy and alive, we should take care of our body and eat proper food, healthy food, then our body will functions properly. Okay, so what you should do to stay healthy? Okay, you need food to keep alive and stay healthy. ये तो आप सबको पता है ना, विदाउट फूड तो कोई भी अलाइव नहीं रह सकता. कितने दिन रह सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन, बट जितने 2-3 डेज के बाद यू नीड ऑफ food. Okay, so to stay healthy and alive, we must need a regular supply of food. Okay, because food give us energy. Without energy we are not able to do anything. We can't do anything if we are not eating food. If we are not getting energy, then we are not able to do any work. Okay, so ग्रोइंग चिल्ड्रन, जैसे आप लोग हैं, यू आर ऑल आर इन ग्रोइंग एज. ठीक है, आपकी ग्रोइंग एज है ना, आपने देखा आपकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है, ये सारी आपकी ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं आप.
तो growing children need to eat food that contains a lot of proteins. ठीक है, फूड को आपको पता है ना, फूड में जो हम लोग हेल्दी फूड खा रहे हैं, in this food protein, carbohydrate, vitamins, minerals, water, these all things are present. These things make our food a balanced diet. Okay, so जो growing children they need a lot of protein. Why they need protein? Because protein give them energy, and protein is needed for the building of cells. And you know, the basic unit of your life is, your body is सेल. ठीक है, सेल्स है ना जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है. तो जो हमारे पास अगर हम लोग वो फूड खा रहे हैं जो प्रोटीन पे है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन है, तो तब क्या है कि इजीली जो सेल्स, न्यू सेल्स भी बन रहे हैं. अगर कोई सेल्स एंड टिश्यू डैमेज हो गया तो प्रोटीन उनको रिपेयर भी कर रही है. और प्रोटीन आपको किस किस फूड से मिल रही है? आपके पास मीट है, एग, फिश, ये सारी चीज़ें आपको प्रोटीन्स दे रही हैं. ठीक है, so growing children need to eat food that contain lots of protein. Proteins are found in meat, milk, eggs, fish and beans. fish Fresh fruit and vegetables are also very beneficial. ठीक है, आपको पता है ना, फ्रूट्स और जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं. सो यू शुड ईट these things too. Okay, you should eat food at regular intervals and should not stay hungry for a long time. You must eat a balanced diet too, so that your body will grow प्रॉपरली. अब ये नहीं है कि आपने बस खाते जाना है. ठीक है, ऐसे भी नहीं करना. बहुत नो नीड टू ईट टू मच एंड टू लेस फूड. ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना, बहुत कम भी नहीं खाना. एक रेगुलर एंड मस्ट ईट एट रेगुलर इंटरवल्स. जैसे आप खाते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, देन यू विल you take lunch and then dinner. So should eat food at regular intervals. That's why your body will get the proper food at regular supply of food. Okay, so when we eat a balanced diet, then our body will grow properly. Okay, your body, because we know the balanced diet is the diet in which all the nutrients are present in the right amount. Nutrients mean carbohydrate, proteins, vitamin, minerals, water, fats. These all nutrients, they must be present in your balanced diet, then we grow properly. Okay, जो जितने भी हमारे जो organs हैं, जो हमारी body है, उन सब की proper growth के लिए हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए. ठीक है, अब ये नहीं है कि अगर आपको एक चीज़ पसंद नहीं है तो आप नहीं खा रहे. ठीक है, आपने हर वो फूड खाना है जो आपके लिए हेल्दी है. ठीक है, आपने फ्रूट्स भी खाने हैं, मीट भी खाना है, वेजिटेबल भी खानी है, बीन्स भी खानी है, जूसेस, वाटर, ये सारी चीज़ें आपने लेनी है, फ्रूट्स. इससे क्या है कि आपकी बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन सब की हेल्थ के लिए ये फूड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. इसलिए जो आपके पेरेंट्स आपको देते हैं ना, जो मम्मा देती हैं, तो वो खुशी खुशी खाते हैं, नखरे नहीं करते कि हम ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, बट इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ. सो ये जो जितने हम लोग जंक फूड्स खाते हैं, टू अवॉइड दैट, उनको अवॉइड करना है और अच्छा फूड खाना है जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो. ओके, सो और इसके अलावा क्या करना है? ठीक है, इसके अलावा आपने करना है, यू मस्ट एक्सरसाइज. ठीक है, एक्सरसाइज भी करनी है. ये नहीं है कि ईट एंड रेस्ट, नथिंग. ओके, नॉट like this. When you will eat, your food must be digested. And how it is digested? When we do exercise, then our body will functions properly, the food properly digested, and then it give us energy, because we are eating food to get energy. हम लोग क्यों फूड खा रहे हैं? कि हमें एनर्जी मिले. अगर वही फूड डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, देन हाउ इट गिव अस एनर्जी. ओके, so you must exercise daily to keep all the parts of the body in good working order. Regular exercise keeps your body strong and fit. It keeps your muscles and joints healthy. It makes the blood reach every part of your body. Exercise help your body use up the food that you eat. So it stops you from becoming fat. Cycling, skipping, walking and swimming are some of the best ways to exercise. ये सारी चीज़ें
ये क्या है? these are the different types of exercise which you must do. Okay, so when you are doing exercise you will become healthy and fit. So class, now next topic is keep yourself clean, and also clean how you will keep yourself clean. You must keep your body clean. Washing and bathing keeps your body free from dirt. It also stops you from getting skin diseases. Your house should not be dirty. The bathroom and kitchen should be particularly clean. Household rubbish should be kept in a covered bin. The drains around your house should also be covered. Dirty water should not allowed to stand in pools and puddles around your house or in the street. You must rest to get back the energy that you have used up. Okay, so should clean योर हाउ यू शुड अपने आप को भी आपने बिल्कुल हेल्दी और साफ़ सुथरा रखना है, क्लीन रखना है, ब्रश करना है, बाथ लेना है अच्छे से। और इसके अलावा आपने अपने घर को भी साफ़ रखना है, जो स्ट्रीट्स हैं उनको भी साफ़ रखना है, उनमें गंद नहीं बनाना। ये ना अपना घर साफ़ करें, स्ट्रीट्स और रोड्स को आप डर्टी करते, उनको भी क्लीन करना है, ठीक है। और इस सब के बाद आपने रेस्ट भी करनी है। आप देखें, अगर आप लोग रेस्ट नहीं करते तो आपकी बॉडी जब थक जाती है तो आप लोग फ्रेश नहीं होते। जब आप लोग रेस्ट करेंगे देन योर बॉडी ऑर्गन्स फ्रेश हो जाएंगे एंड यू कैन डू योर वर्क प्रॉपरली। ओके, द नेक्स्ट वन इज टॉपिक इज इट इज़ जस्ट रिवीजन। ओके, मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। आपको पता है कि क्लास में ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आई एम जस्ट हेयर टू रिवाइज दीज थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन स्मॉल, ऑर्गेनिजम्स मीन लिविंग थिंग। ओके, so microorganism mean those organisms which are very small, those organisms which we can't see with our eyes. Okay, so to see them we use microscope. उनको देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? We use microscope to see them. Okay, so and these microorganisms cause many diseases. Okay, these microorganisms they cause many diseases. They are very tiny. Tiny means small, single celled organ. Single cell mean हम देखें हमारी बॉडी है, in our body millions of cells are present. अब millions of cells है, जो एक single cell organism हम कितना small होगा? इनको हम ये भी कह सकते हैं they are unicellular. Uni mean one. They are unicellular organisms called microorganism. Microorganism can be seen only with the help of microscope. They are found in all living things, plants and animals. They can live in the air, on land and in fresh and salt water. Some of them can be harmful and can cause diseases. ठीक है, आपको पता है germs and microorganisms they are present everywhere, but we can't see. That's why they are not seen with eyes, so we can't see them. Okay, but they are present in land, in air, in water, everywhere they are present. Okay, and they are also called microbes. Okay, in short form we say these are microbes. Okay, so germs are microorganisms that cause diseases. Bacteria and viruses are kinds of germs. बैक्टीरिया वायरस का तो सुना हुआ है ना, वायरसेस आजकल बड़ा कॉमन है जिसकी वजह से आप लोग घर में बैठे हुए हैं सब। कोरोना वायरस इट इज़ आल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको नज़र तो नहीं आ रहा ना, but because it is a microorganism, single cell, we can't see. Okay, but it is present everywhere. Okay, that's why we are wearing mask, use sanitizer to remove this germ. Okay, so when germs attack the body you become ill. ऐसे ही होते हैं ना, जब germs attack करते हैं आप लोग बीमार हो जाते हैं। sometimes larger animals such as worms भी आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ जो बड़े होते हैं, जैसे आपकी अक्सर आपकी जो बैली में होते हैं छोटे बच्चों के जो मट्टी खाते हैं, उन बच्चों में भी ये वर्म्स आ जाते हैं जिनको हम लोग उर्दू में कहते हैं पेट के जो कीड़े होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से ये बिल्कुल कीड़े होते हैं जो हमें इल करते हैं। ओके, दे आल्सो कॉज इलनेस। ओके, next we will read about bacteria. Okay, so bacteria are
are so small that they can only be seen through a microscope. Bacteria cause diseases such as cholera, typhoid and throat infection. Bacteria in the mouth cause tooth decay. ठीक है, bacteria it is also a microscope microorganism. It cause different diseases. बहुत सारी diseases हैं जो इस बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं, जैसे टूथ डिके है, जो टीथ का डैमेज होना वो है, फिर थ्रोट इन्फेक्शन है, टाइफाइड है, ये सारी जो डिजीज़ हैं इट इज़ कॉज्ड बाय दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉल्ड बैक्टीरियल. आपने देखा है ना, आप कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन मीन इट इज़ अ जर्म, इट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट इज वायरसेस. वायरस तो आजकल बहुत फेमस है ना. वायरसेस एंड द कॉमन वायरसेस टुडे जिसको हम लोग आजकल सुन रहे हैं नाउ-अ-डेज, COVID-19. ओके, so viruses are even smaller than bacteria. They are बहुत ज़्यादा small हैं. They are even smaller than bacteria. They live inside the cells of the body. They cause diseases such as the common cold, influenza, measles and chickenpox. ये सारी जो diseases हैं ये इन viruses की वजह से हो रही हैं. ठीक है, अब इसी में इन्फेक्शन है. इन्फेक्शन का बहुत डिटेल में क्लास में आपको मैंने स्टडी करवाया था कि कैसे इन्फेक्शन हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे वंस अगेन एक दफ़ा मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब हमारे पास जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट इनटू योर बॉडी दे रिप्रोड्यूस रैपिडली. ठीक है, किसी भी तरीके से अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वंस दे एंटर, एक दफ़ा ये अगर हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो वो बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं. यानी बहुत ज़्यादा अगर एक एंटर हुआ है तो वो जल्दी से डिवाइड एंड रीडिवाइड होके बहुत ज़्यादा जर्म्स हमारी बॉडी में बना देता है. ओके, वो क्या करते हैं, दे फीड ऑन द बॉडी सेल्स. वो हमारी बॉडी जो सेल्स हैं उन्हीं से अपना फूड ले रहे हैं. दे फीड ऑन द बॉडी सेल्स एंड प्रोड्यूस पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंसेस कॉल्ड टॉक्सिन. ठीक है, जो हमारी बॉडी में जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वंस दे एंटर दे रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड दे फीड ऑन आवर बॉडी सेल्स एंड देन दे प्रोड्यूस अ टॉक्सिक मटेरियल विच इज़ कॉल्ड टॉक्सिन. ठीक है, एक पॉइजनस, एक जहरीला जो एक सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं टॉक्सिन. ओके, एज देयर नंबर इंक्रीजेज मोर सेल्स आर डैमेज एंड मोर टॉक्सिन आर प्रोड्यूस एंड सो यू सून बिकम इल. ओके, ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में जब ये सारे जर्म्स फैल जाते हैं तो हम लोग बीमार हो जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन, जिसको हम लोग कह रहे हैं इन्फेक्शन हो गया है. ये वही इन्फेक्शन है व्हेन जर्म्स आर एंटर इन आवर बॉडी एंड दे रिप्रोड्यूस एंड डैमेज आवर बॉडी सेल एंड वी बिकम इल. ओके, इसी को हम कहते हैं इन्फेक्शन है. अब देखें, अगर ये जर्म्स हमारी आइज़ में एंटर हुए हैं और वहीं तक रहे हैं देन हमारी आइज़ डैमेज हो जाएंगी, आइज़ की डिज़ीज़ कोई हो जाएगी. इसी तरह ईयर, लंग्स में. लेकिन अगर ये पूरी बॉडी में फैल गए हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में अगर स्प्रेड हो गए हैं देन हम लोग पूरी हमारी बॉडी इफ़ेक्ट होगी. जिस तरह हमें टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर में आपने देखा है ना आपकी पूरी बॉडी हॉट हो जाती है, पूरी बॉडी वार्म हो जाती है. इट इज़ आल्सो ड्यू टू दीज जर्म्स. ओके, so our body tries to fight these germs with the help of the white blood cells. Sometimes we need to take medicine like antibiotics to kill the germs. आपने देखा है ना, आप लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं. ये हमारी अपनी बॉडी का भी एक डिफेंस सिस्टम है. जिस तरह हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं इन जर्म्स से. लेकिन अगर वो हमें प्रोटेक्ट ना कर सकें और फिर भी हम बीमार हो जाएं देन वी यूज़ मेडिसिन. जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो इन जर्म्स को किल करती हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू जर्म्स एंटर इन द बॉडी. कैसे जर्म्स एंटर हो रहे हैं ये तो आपको पता है. जर्म्स एंटर डिफरेंट वे से हो रहे हैं. व्हेन पीपल कफ एंड स्नीज जर्म्स फ्रॉम देयर बॉडीज आर पुश्ड आउट इन द एयर. आपने देखा है हम लोग मास्क क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वी आर स्नीजिंग एंड वी आर कफिंग एंड वी आर इनहेलिंग इन दिस एयर. ओके, वी आर ब्रीथिंग इन द एयर. अब उसी एयर में अगर जो एक इल पर्सन है वो भी ब्रीथ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, तो उसके सारे जर्म्स उसी एयर से जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो वो हम लोग अपने अंदर लेके जा रहे हैं. जब हम लोग जर्म्स अपने अंदर लेके जा रहे हैं देन वी विल आल्सो बिकम इल. इसलिए हम लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं ताकि जो हम लोग उन जर्म्स से खुद को प्रोटेक्ट कर सकें कि वो हमारी एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ वो अंदर एंटर ना हो. ओके, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द मास्क. ओके, वी आर वेयरिंग मास्क.
So when you breathe in the same air, germs enter your body, they attack the cells of the body and make you ill. You can catch some diseases if you touch people who have these diseases, or if you use the things that they have used, such as their cups, towels, comb, food and drink can have germs. It flies sit on them. ठीक है. और इसी तरह अगर आप लोग वो चीज़ें सारी यूज़ कर रहे हैं जो एक इल पर्सन यूज़ कर रहा है, तो बाय यूजिंग दोज थिंग्स आप तब भी बीमार होंगे. किस लिए? उन सब पे भी तो जर्म्स हैं ना. अगर एक वही पेशेंट है जिसको फ्लू है, आप उसी का टॉवल भी यूज़ कर रहे हैं, उसी की सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वो जर्म्स आपकी तरफ भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे. ठीक है. इसी तरह वो फूड भी नहीं खाना जिस पे फ्लाइज और ये सारी चीज़ें बैठ रही हैं, वो फूड खाएंगे तो उसमें भी जर्म्स होंगे. ओके. जर्म्स इन फूड एंड वाटर कैन कॉज फूड पॉइजनिंग. आपको पता है फूड पॉइजनिंग हो जाती है अगर आपने ये सारा फूड खाया. ठीक है. अब प्रोटेक्ट कैसे करना है. ठीक है. अब ये चैप्टर चलें नेक्स्ट जो हमारे पास है कल की, उसमें मैं आपको बताऊंगी. और कल की जो क्लास अभी आज मैं अपलोड करूंगी, कल की जो आपको मैं वीडियो दूंगी उसके साथ में आपको होमवर्क भी दूंगी. ठीक है. असाइनमेंट आपको दूंगी कल का. ये हम लोग कंप्लीट करके देन आई विल गिव यू असाइनमेंट. ओके. सो प्लीज़ रीड द यूनिट एंड अंडरस्टैंड द यूनिट एंड लर्न इट. ठीक है. ऑलरेडी आपको इसके क्वेश्चन आंसर काफ़ी सारे कर चुके हैं. मज़ीद आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स बना के दूंगी. यू विल डू दिस टू. ओके. ओके क्लास. थैंक यू. लिसन एंड वॉच द वीडियोज़ एंड अंडरस्टैंड एंड आल्सो लर्न. ठीक है. पढ़ना भी है. ओके. ओके फाइव क्लास. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.